وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سورہ بقرہ آیت نمبر 261 to 286۔ ان آیتوں میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں اور سود کے بارے میں اور کسی کو مال قرض دیا ہو تو گواہ رکھنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 261۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا ثواب چاہے اور بڑھا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کا قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا ہے، اور اس سے مراد ہر وہ خرچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب داخل ہیں۔ آیت نمبر 262۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑے بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سائل کسی سے مانگے اور کسی وجہ سے دے نہ سکتا ہو تو اس سے نرم الفاظ میں معذرت کر لینا، اور اگر وہ مانگنے پر ناروا اصرار کرے تو اس کی غلطی سے درگزر کرنا۔ اس سے کہے بہتر یہ ہے کہ انسان دے تو دے مگر بعد میں احسان جتائے یا اسے ذلیل کر کے تکلیف پہنچائے۔ آیت نمبر 264۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرف ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ چٹان پر اگر مٹی جمی ہو تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ اس پر کوئی چیز کاشت کر لی جائے، لیکن اگر بارش مٹی کو بہا لے جائے تو چٹان کے چکنے پتھر کاشت کے قابل نہیں رہتے۔ اس طرح صدقہ خیرات سے آخرت کے ثواب کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری یا احسان جتانے کی خرابی لگ جائے تو وہ صدقے کو بہا لے جاتی ہے اور ثواب کی کوئی امید نہیں رہتی۔ آیت نمبر 265۔ اور جو لوگ اپنے مال اور اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو اور اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح
देखता है। आयत नंबर 266, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि उसका खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हो और उसको उस बाग में और भी हर तरह की फल हासिल हो और बुढ़ापे ने उसे आ पकड़ा हो और उसके बच्चे अभी कमज़ोर हो। इतने में एक आग से भरा बगुला आकर उसको अपनी जद में ले ले और पूरा बाग जलकर रह जाए। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर करो। सदक़े को बर्बाद करने की ये दूसरी मिसाल है। जिस तरह एक आग से भरा बगुला हरे भरे बाग को एकाएक तबाह कर डालता है, इसी तरह रियाकारी या सदका देकर एहसान जतलाना या किसी और तरह गरीब आदमी को सताना सदक़े के अजीम सवाब को बर्बाद कर डालता है। आयत नंबर 267, ऐ ईमान वालों, जो कुछ तुमने कमाया हो और जो पैदावार हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली हो उसकी अच्छी चीज़ों का एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो और ये नियत ना रखो कि बस ऐसी ख़राब किस्म की चीज़ें अल्लाह के नाम पर दिया करोगे जो अगर कोई दूसरा तुम्हें दे दे तो नफ़रत के मारे तुम उसे आंख मीचे बगैर ना ले सको। और याद रखो कि अल्लाह ऐसा बेनियाज है कि हर किस्म की तारीफ़ उसकी तरफ लौटती है। आयत नंबर 268, शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है और अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फजल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी उसत वाला, हर बात जानने वाला है। आयत नंबर 269, वो जिसको चाहता है दानाई अता कर देता है और जिसे दानाई अता हो गई उसे वाफिर मक़दार में भलाई मिल गई। और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो समझ के मालिक हैं। आयत नंबर 270, और तुम जो कोई खर्च करो या कोई मन्नत मानो अल्लाह उसे जानता है और जालिमों को किसी तरह मददगार मैसर नहीं आएंगे। आयत नंबर 271, अगर तुम सदक़ात ज़ाहिर करके दो तब भी अच्छा है और अगर उनको छुपा कर उखरा को दो तो ये तुम्हारे हक़ में कहीं बेहतर है और अल्लाह तुम्हारे बुराई का कफ़ारा कर देगा और अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरफ बाखबर है। आयत नंबर 272, ऐ पैगंबर, उन काफिरों को राह रास्त पर ले आना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त पर ले आता है। और जो माल भी तुम खर्च करते हो वो खुद तुम्हारे फ़ायदे के लिए होता है, जबकि तुम अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के सिवा किसी और गर्ज से खर्च नहीं करते। और जो माल भी तुम खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम पर ज़रा भी जुल्म नहीं होगा। बाद अंसारी साहबा के कुछ गरीब रिश्तेदार थे, मगर चूँकि वो काफिर थे इसलिए वो उनकी इमदाद नहीं करते थे और इस इंतज़ार में थे कि वो इस्लाम ले आए तो उनकी इमदाद करे। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि खुद आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हिदायत फरमाई थी। इस पर यह आयत नाजिल हुई, रूहुल मानी। इस तरह मुसलमानों को बताया गया कि आप पर उनके इस्लाम लाने की कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती और अगर आप उन गरीब काफिरों पर भी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से कुछ खर्च करेंगे तो उसका भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा।
आयत नंबर 273। माल इमदाद के बतौर ख़ास मुस्तहक़ वो फ़ुक़रा हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में इस तरह मुक़य्यद कर रखा है कि वो माश की तलाश के लिए ज़मीन में चल फिर नहीं सकते, चूँकि वो इतने पाक दामन है कि किसी से सवाल नहीं करते, इसलिए नावाकिफ़ आदमी उन्हें मालदार समझता है। तुम उनके चेहरे की अलामतों से उनकी अंदरूनी हालत को पहचान सकते हो, मगर वो लोगों से लग लिपट कर सवाल नहीं करते, और तुम जो माल भी खर्च करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ये आयत असहाबे सुफ़ा के बारे में नाजिल हुई है। ये वो सहबा थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म दीन हासिल करने के लिए वक्फ कर दी थी, और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी से मुत्तसिल एक चौतरे पर आ पड़े थे। तालिब इल्म की वजह से वो कोई मुआशी मुश्किल इख्तियार नहीं कर सकते थे, मगर मुफलिसी की सख्तियाँ हंसी खुशी बर्दाश्त करते थे। किसी से मांगने का सवाल नहीं था। इस आयत ने बताया कि ऐसे लोग इमदाद की ज़्यादा मुस्तहक़ हैं जो एक नेक मकसद से पूरी उम्मत के फ़ायदे के लिए मुक़य्यद होकर रह गए हैं और सख्तियाँ झेलने के बावजूद अपनी ज़रूरत किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करते हैं। आयत नंबर 261 से 274 तक सदक़ा की फजीलत और उसके अहकाम बयान हुए थे। आगे आयत नंबर 280 तक उसकी ज़िद यानी सूद का बयान है। सदक़ात इंसान के जज्बे सखावत की निशानी है और सूद बुख़्ल और माल की मोहब्बत की अलामत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।